Hey everyone, what's up? So this is Sakshi and have a very warm welcome to my YouTube channel named Tech with She. So yes, we are on our computer screen. So have you seen that what I have opened here? So yes, I have opened LibreOffice. And in LibreOffice, I have opened the spreadsheet option. Do you know what is spreadsheet? So yes, a spreadsheet is a sheet where we calculate or where we do operations on arithmetic operators or on numericals. So what it is? Have you understand anything? No, I don't. So let me explain in Hindi. हमारा जो स्प्रेडशीट है यहाँ पर हम क्या करते हैं कि अपने डाटा को एंटर करते हैं और उस डाटा से हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं. कैलकुलेशंस हमारी किसी भी टाइप की हो सकती हैं. ठीक है, तो इसमें हम लोग जैसे कि टेबल्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, फिर उन्हें कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं. तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ऑपरेशंस यूज़ करते हैं, जो भी हमें नीड होती है वो सभी हम लोग अपने यहाँ पर अप्लाई करते हैं. ठीक है. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सो वी आर गोइंग टू डू to create a new chart. Chart can be of any type. Okay, yes, chart can be of any type and we create a data for creating the chart. Yes, of course, because without any data we can't create a chart. We can create a chart but there will be no data showing on it. So yes, now start. So first of all, I used to enter month in the first A1 address. So month. Second, I enter all the months like Jan, Feb, March, April, May, June. Okay, and now there I will enter salary. You can give any of the digits, whatever you want for your salary. Okay. So I have given some values to all these month as a salary. Now let's create a chart. So you can insert a chart from their option is present named insert in the menu bar, and also you have an option there also. Insert chart. Yes, this insert chart. So you can insert from there also and from there also. So let me click on this insert chart option and you will be having a different type of option where you can select the type of chart you want to enter. So I want to create a chart of pie. So there are further options you will be having in your computer screen named normal, pie chart, donut and the donut chart. So I want to create a chart of normal pie chart. Also you have an option of 3D look. When you click on this option, you will be having your pie chart as a 3D look. See, this is the look. And when you click on 3D look again, you will retain your position of your chart as original pie chart. So I want this as my chart. So I will select this normal and click on this finish icon. Yes. जैसे ही हम लोग इस फिनिश आइकन पे सेलेक्ट करेंगे, हमारा जो चार्ट होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा और हमारी स्प्रेडशीट की स्क्रीन पे दिखने लगेगा. नाउ वी विल मिनिमाइज इट, मैक्सिमाइज इट. जैसे भी पोजीशन हमें चाहिए हम लोग ऐसा उसे फिक्स कर लेंगे. सो लेट मी फिक्स इट. ठीक है, आई होप इट इज better. Now when you click on it, double click, you will be seeing that there small blocks is showing there and also some information like data point 5 6 data series. So yes, now click a single click on right click and you will be having a different type of option and you have to enter chart type whatever you want to do. So first I want to show you that. Let me click insert data labels. When you click on insert data labels,
Yes. So what is the difference between this chart and previous chart? So you will be observe that all the values is now on the screen, but before the previous chart there is no value showing. See, when I press on Ctrl Z, there is no value on the screen, and when we click on right click and once again insert data labels, are all the values is showing there. So format data labels, let me click on format data labels. Let's see what we can do from there. Yes, so this is the interface of format data labels. From there, if you want to show your values as in a percentage, value as percentage, you can simply click on this option, value as percentage. So let me tell you one thing, that if you click on value as percentage, and also have you seen that this option is default open, default clicked, value as number. So when you click on these both icon, you will be seeing that in percentage and in numbers, in both the numbers and percentage, your value will be shown. But I don't want in that type of category. Yes, also category option is also there. So let's see what is the difference between category, value as percentage and value as number. See, this is the final look. You will be having your month salary and a percentage in the same plane. ठीक है, तो हमें तीनों चीजें एक ही जगह पर मिल गई. अब हम क्या करेंगे, हमें ऐसा नहीं चाहिए, हमें क्या, जैसा आपको चाहिए आप सेट कर सकते हैं, बट आई डोंट लाइक दिस. सो आई वॉन्ट टू रिमूव दिस वैल्यू एज नंबर एंड कैटेगरी. आई वॉन्ट ओनली परसेंटेज. सो मैंने परसेंटेज ही रखा है सिर्फ. नाउ लेट्स मूव ऑन डाटा लेबल्स. फॉन्ट भी हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो लेट मी क्लिक ऑन ल्यूसिडा. देख लेते हैं कोई और हो अच्छी, तो वो भी फॉन्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, बट आई थिंक ल्यूसिडा इज द बेस्ट. ल्यूसिडा कैलीग्राफी. And we can also increase the font size, so let's increase it to 12. Yes, and also you can change the position of your data label from where, let me see, let me find. So font effect, font, data labels. Okay, see, आई थिंक ये कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे फिर से चेंज कर लेना चाहिए. उसे नॉर्मल ही रखते हैं हम लोग, उससे क्या होगा कि थोड़ा ठीक लगेगा. ऐसे लग रहा है कुछ ज़्यादा ही एडिटिंग हो गई है, इटैलिक हो गया है आई थिंक. ल्यूसिडा हैंड राइटिंग में क्लिक करके देखते हैं, ये थोड़ा बेटर लग रहा है. अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ आप लोगों को. अभी क्या है कि हम लोग और भी चीज़ें कर सकते हैं. पहले हम लोग कुछ चीज़ें देख लेते हैं. ये तो हमारा हो गया डाटा सीरीज. हमें यहाँ नहीं जाना है, चार्ट टाइप में जाना है. चार्ट से हम लोग यहाँ कर सकते हैं. और क्या मैं बताने जा रही थी, यहाँ रीसेट से करेंगे तो रीसेट हमारा ऑल डाटा पॉइंट जो भी हम लोगों ने फॉर्मेटिंग की है वो डिलीट हो जाएगी, रीसेट हो जाएगी. सॉरी, डिलीट करने के लिए ऊपर वाला ऑप्शन है. फॉर्मेट डाटा लेबल के लिए यहाँ वाला ऑप्शन है. और क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं, लेट्स सी. फॉन्ट कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं. तो चलिए यहाँ से हम लोग फॉन्ट कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं. ठीक है, और क्या कर सकते हैं, ओवर लाइनिंग नहीं, सिंगल लाइनिंग कर लेते हैं. स्ट्राइक थ्रू ओवर लाइनिंग नहीं करते हैं, विदाउट अंडरलाइनिंग कर लेते हैं, सिंगल. और क्या करें हम लोग, लेट्स सी. यस,
फॉन्ट इफेक्ट हो गया है। फॉन्ट में हम लोग ने सिलेक्ट कर लिया था कि क्या क्या करना है। डाटा लेबल्स में हम लोगों ने देख लिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं। प्लेसमेंट इनसाइड करके देखते हैं क्या चीज़ अच्छी लगती है। यस, ये इनसाइड में समझ में नहीं आ रहा है, कुछ ज़्यादा बेटर नहीं लग रहा है, इसको कंट्रोल Z कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी हमारी। देखिए, इसको हम लोग ऐसे बाहर भी निकाल सकते हैं, यही चीज़ मैं बता रही थी। इसको मैं पहले थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, फिर दिखाती हूँ क्या क्या फॉर्मेटिंग और हो सकती है। ये मैंने इसे किया है बड़ा। ठीक है, अब जैसे कि मैंने इसे बाहर निकाला है, वैसे ये कुछ ज़्यादा ही बाहर निकल आया है, शायद इसको थोड़ा सा करते हैं बस। ये भी हल्का सा बाहर इसको निकालते हैं, इसे थोड़ा सा डिटैच करते हैं। ये शायद बाहर ही जाएगा, इसको इस तरह नहीं रखते हैं। ये भी हल्का सा बाहर जा सकता है और इसको हल्का सा कर लेते हैं। ये कुछ ज़्यादा ही बाहर जा रहे हैं, मतलब हम लोग का शेप ही बिगड़ा जा रहा है। इन्हें वापस पोजीशन रिटेन करा देते हैं क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका जो ये है इसको यहाँ पर फिक्स करते हैं। और ये जो है हमारा, इसको लाकर नीचे सेट कर देते हैं। क्या हो गया भाई, इसमें थोड़ा सा इसे थोड़े से दौरे पड़ते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हम लोग इसे नॉर्मली पोजीशन के थ्रू भी कर सकते हैं, नीचे बॉटम में ना, हमें झंझट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा मिडिल में कर लेते हैं, या एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग अपनी एक्स्ट्रा लाइन कट कर देते हैं और इसको अब हम लाते हैं मिडिल में। अब ये ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझे लगता है। So in this way we can create a table according to our need, according to our presentation of our data, and create a chart for our table. तो ये रही हमारी टेबल। अब हम लोग और क्या एडिटिंग कर सकते हैं, तो कर सकते हैं ये कि हम लोग मंथ और सैलरी को सपोज बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट साइज इंक्रीज करके 12 करके। और क्या हम लोग कर सकते हैं कि इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, एंड हाईलाइट में हम लोग कोई भी कलर ले सकते हैं, सपोज पिंक ले लिया। ठीक है, इन सबको क्या कर सकते हैं, यही कर सकते हैं कि स्टाइल में जाकर देखते हैं। स्टाइल में छोड़ो, हम लोग एडिटिंग, व्यू, इंसर्ट, किस में जाएं जो ये और बेटर लगे। कलर ही कर देते हैं, कुछ और नहीं करते हैं। कलर में जाते हैं और हम लोग करते हैं इसे ग्रीन। आई थिंक ये ग्रीन अच्छा नहीं लग रहा है, इसको करते हैं लाइट ग्रीन। अभी भी ये नहीं अच्छा लग रहा है, इसको रहने देते हैं। काम करते हैं, इसको रहने देते हैं। सो ओवरव्यू मेरा जो था इस वीडियो को दिखाने का कि एक चार्ट के थ्रू, मतलब एक डाटा के थ्रू हम लोग कैसे चार्ट बनाते हैं, कैसे फिक्स करते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो हमारी पाई चार्ट के लिए थी। हम और भी चार्ट क्रिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डाटा। जैसा डाटा होगा हमारा चार्ट वैसा ही बनेगा, चाहे वो बार चार्ट हो, चाहे पाई चार्ट हो, या कोई भी चार्ट हो। जैसे कि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन है, कॉलम चार्ट, एरिया, लाइन, बबल्स, जैसे भी हम लोग की नीड होगी वैसा चार्ट हमें बन के मिल जाएगा। So if you like this video, please subscribe to my channel, and also if you have any doubt related to this video, please comment me down. So thank you. I hope you all are doing well. So have a nice day.